Now our next topic is nursing management of the elderly. Elderly are the old age person. So it includes the assessment of elderly introduction. The older person has spent a lifetime evolving as a person and therefore must be considered as a unique individual. है ना, जो older person है उसने अपना lifetime as a person ही spend किया है और उनको यूनिक इंडिविजुअल बोला जाता है. सो व्हेन असेसिंग एल्डरली पेशेंट यू मस्ट फाइंड दैट दे डिफर ग्रेटली फ्रॉम द पेशेंट ऑफ अदर एज ग्रुप. तो जब किसी एल्डरली पर्सन को असेस करेंगे तो वो दूसरे एज ग्रुप के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंट होंगे. देन द कंपोनेंट ऑफ जीएट्रिक असेसमेंट. It involves functional assessment, clinical assessment. Clinical assessment include history and physical assessment, nutritional assessment or psychosocial assessment. The first one is functional assessment. It is the measurement of patient ability to complete functional task. है ना, इसमें जो elderly है उसको चेक करेंगे कि वो अपने day to day life में जो उसके normal task हैं, he is or she is able to do that task or not. So in this the patient ability to complete functional task and used to evaluate the older adults overall well-being, जिससे हम person की overall evaluation कर सकते हैं कि that person is active, dull, inactive, etc. and self-care activity. For example, activity of daily living such as bathing, dressing, toileting, feeding, etc. तो ये आएगी functional assessment में कि जो elderly है वो normal functioning कर रहा है, ठीक है, उसकी day to day activities normal हो रही हैं खुद से या नहीं. After that, next है clinical assessment. Clinical assessment include the physical assessment. It is the component of the health assessment. Together with health history and it helps the nurses to identify and evaluate the patient's strength, weakness और capacities. है ना, physical examination के साथ साथ person की health history भी लेनी है जिससे nurses can evaluate the strength. person की जो elderly है उसकी strength क्या है या वीकनेसेस क्या है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या वो कर सकता है. तो इसमें जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, इन दिस टेक्निक यूज्ड आर इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन. तो कॉम्प्रिहेंसिव फिजिकल असेसमेंट में क्या आ जाएगा? ऑब्टेनिंग हेल्थ हिस्ट्री. इट इंक्लूड प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री और पास्ट हेल्थ हिस्ट्री. करंट हेल्थ स्टेटस चेक करेंगे कि पर्सन को करेंटली कैसा हेल्थ स्टेटस है, हेल्दी है, अनहेल्दी है, दैट शुड बी चेक्ड. मेडिकल हिस्ट्री. मेडिकल हिस्ट्री फॉर सफरिंग फ्रॉम मोर देन वन हेल्थ प्रॉब्लम, एनी सर्जरी, एलर्जी, इमोशनल लेवल and previous treatment can be taken. Then preview of the body system, systematic examination elderly का करेंगे. After that the general assessment. General assessment include the appearance. Appearance में nourishment, undernourished, active, dull, that should be checked. Grooming check करेंगे. Grooming is a appearance check करेंगे कि the person is neat, clean, है ना, properly dressed up, वो सारी चीजें check करेंगे. Then general mobility. बिकॉज जो एल्डरली पर्सन है, द एल्डरली इज हैविंग प्रॉब्लम विद द मूवमेंट, सिटिंग, है ना, गेटिंग अप, तो मोबिलिटी चेक करेंगे, मूवमेंट चेक करेंगे. लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, द पर्सन इज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस. बीपी, टेम्परेचर, वाइटल साइन मॉनिटरिंग कैन बी डन. एंड देन स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग फॉर, क्योंकि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, स्क्रीनिंग फॉर विजन. विजन में क्या चेक करेंगे? कैटरैक्ट, ओपेसिटी ऑफ द लेंस चेक करेंगे. हेयरिंग, हेयरिंग डिफेक्ट, हियरिंग लॉस के लिए चेक करेंगे. अपर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी में फंक्शन चेक करेंगे, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड राइटिंग, ईटिंग एक्सेट्रा. लोअर एक्सट्रीमिटीज में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और बैलेंस चेक करेंगे. पर्सन को अटेक्सिया तो नहीं है, वॉकिंग, सिटिंग पोजिशन, दैट शुड बी चेक्ड. After that, next is the nutritional assessment. Nutritional assessment include the hydration and the weight. Hydration, that the person is hydrated or dehydrated, or the poor nutritional status may be present in. कब प्रेजेंट होगा पोअर न्यूट्रिशनल स्टेटस? अगर पर्सन को कोई मेडिकल इलनेस है, डिप्रेशन या वीकनेस है. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कैन बी डन.
Anthropometric measurement include height, weight, length, etc., and diameters, etc. Then the biochemical values. Biochemical values include the blood test and LFT, RFT, CBC count, etc. After that, the psychosocial assessment. तो mental status should be assessed through a standardized टूल है ना. मेंटल स्टेटस किसके थ्रू चेक करेंगे? मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और मेंटल स्टेटस चेंजेस एंड कैलकुलेटिंग एबिलिटी एंड द शॉर्ट टर्म मेमोरी ना. मेमोरी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए भी चेक करेंगे. आफ्टर दैट असेस द होम एनवायरनमेंट ऑफ द एल्डरली कि एल्डरली का होम एनवायरनमेंट कैसा है. ठीक है, सपोर्टिव है, ये कैसा है, ये उनको किस तरह से बिहेव करते हैं. रिव्यू सोशल सपोर्ट इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल केयर गिवर, बिकॉज जो एल्डरली है दे बिकम डिपेंडेंट ऑन द अदर है ना एंड यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स एंड डिवाइसेस. सो वी शुड रिव्यू द सोशल सपोर्ट इंक्लूडिंग एक्चुअल जो केयर गिवर है या पोटेंशियल सेकेंडरी जो केयर गिवर है, दैट शुड बी चेक्ड. आफ्टर दैट the terminologies include geriatric nursing. Geriatric nursing normally क्या होता है? Nursing is a trained person in the care for a sick person. ठीक है, तो जब geriatric आ गया तो it is a Geriatric nursing is the specialty that concern itself with the provision of nursing services to the geriatric. जो nursing care है that should be provided only to the geriatric old age person को जब provide करेंगे, that is geriatric nursing. Next है geriatrics. Geriatrics is a branch of medicine covering old age and the disorder arising in them. तो it covers the ओल्ड एज पर्सन. जिएट्रिक कवर द ओल्ड एज पर्सन एंड क्या उनमें डिसऑर्डर राइज होते हैं. देन जीरोंटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ चेंजेस एसोसिएटेड विद ओल्ड एज एंड एजिंग प्रोसेस है ना. एजिंग के साथ साथ क्या बॉडीली चेंजेस होंगे, क्या सिस्टम में चेंजेस आएंगे, दैट कम्स अंडर जीरोंटोलॉजी. नेक्स्ट इज एल्डरली care. It is the fulfillment of special need requirement that are unique to the senior citizen है ना. कि जो senior citizen है, elderly है, old age person है, उनको special जो need है that should be fulfilled. ठीक है, फुलफिल हो रही है ये नहीं, दैट इज एल्डरली केयर. देन प्रोस्थेसिस. प्रोस्थेसिस क्या होता है? दिस आर द आर्टिफिशियल डिवाइसेस यूज्ड टू रिप्लेस अ मिसिंग बॉडी पार्ट सच एज लिम्ब, टूथ, आई और हार्ट वॉल्व. After that, aging क्या है? It refers to a biopsychosocial process. ठीक है, तीनों चीजें आएंगी. It refers to the biopsychosocial. Bio means genetic और biochemical changes भी आएंगे. Psycho means mood, personality, behavior में changes आएंगे. Social means cultural और social changes आएंगे. Then it is a process of change occurring between the birth and the death है ना. तो ये बायो साइको सोशल चेंजेस होते हैं जो बर्थ से डेथ के बीच में होंगे. ठीक है, दीज चेंजेस अकर बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ. आफ्टर दैट एल्डर अब्यूज. तो इट इज अ फिजिकल, इमोशनल और फाइनेंशियल हार्म टू एन एल्डरली पर्सन. फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल और फाइनेंशियल की एल्डरली की प्रॉपर्टी ले ली है ना और उसको ओल्ड एज होम में डाल दिया, तो फाइनेंशियल हार्म भी हो सकता है टू एन एल्डरली पर्सन बाय वन और मोर इंडिविजुअल केयर गिवर और द अदर. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द एजिंग प्रोसेस. तो एजिंग एक नॉर्मल यूनिवर्सल फिनोमिना है, प्रोग्रेसिव है. ठीक है, टाइम के साथ साथ एजिंग इंक्रीज होगी. इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर से उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं. तो इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ चेंजेस इन अ पर्सन ओवर टाइम है ना. जो भी पर्सन में टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं, दैट आर द एजिंग. तो एजिंग इन ह्यूमन रेफर्स टू मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस. एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है विच इंक्लूड फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल चेंज है ना, जो हमने पीछे पढ़ा. फिजिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस भी आएंगे. फिजिकल चेंजेस, बॉडी में चेंजेस, सेल में चेंजेस है ना, स्किन में रिंकल्स आ जाएंगे, आईलिड ड्रूपिंग हो जाएगी. ठीक है, तो इस टाइप के चेंजेस आते हैं. स्किन थिन पड़ जाएगी. फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस है ना, मूड, बिहेवियर, पर्सनैलिटी चेंजेस आएंगे और सोशल चेंजेस, कल्चरल चेंजेस. तो डेफिनेशन
important है aging process. It may ask in a 5 marks question. Age it refers to the biopsychosocial process of change occurring between the birth और the death, है ना. birth और death के बीच में जो biopsychosocial changes आते हैं. तो age is measured chronologically और a person birthday is often an important event, है ना. एज को chronologically भी मेयर कर सकते हैं. chronologically का मतलब क्या हुआ कि एज कैन बी मेयर्ड इन डेज, मंथ्स या ईयर्स, है ना, जो हम ईयर्स में कैलकुलेट करते हैं. ये पर्सन बर्थडे इज ऑफन एन इम्पॉर्टेंट इवेंट. तो क्रोनोलॉजिकल एज डज नॉट कोरिलेट परफेक्टली विद द फंक्शनल एज. जो क्रोनोलॉजिकल एज है और जो फंक्शनल एज है वो मैच नहीं करते, क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो सेम हो सकती है बट उनका जो मेंटल जो एबिलिटी है वो डिफरेंट हो सकती है ना. मतलब एक जो दो पर्सन है सेम एज के हैं, क्रोनोलॉजिकल एज सेम है, 20 साल के हैं दोनों, ठीक है, बट उनका जो नॉलेज होगा दैट इज डिफरेंट. तो 2 पर्सन मे बी ऑफ सेम एज बट डिफर इन देयर मेंटल और फिजिकल. देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एजिंग. It include hereditary factor. Hereditary factor में some family live longer than the others. कुछ जो families का लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा है और कुछ का शॉर्टर है. Given the same environmental circumstances, अगर दोनों फैमिली को सेम एनवायरमेंट में रखेंगे फिर भी कुछ का लाइफ स्पैन कम होगा, कुछ का लाइफ स्पैन ज़्यादा होगा. दिस इज रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर. ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? जेनेटिक फैक्टर. आफ्टर दैट द एनवायरमेंटल फैक्टर. एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है, और बायोटिक आर द लिविंग फैक्टर. तो एबायोटिक फैक्टर में जैसे फिजिकल केमिकल कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस, पॉल्यूशन, रेडिएशन, केमिकल, दिस अफेक्ट द एजिंग प्रोसेस, एंड जो नॉन लिविंग फैक्टर है. आफ्टर दैट बायोटिक फैक्टर इंक्लूड सच एज पैथोजन और पैरासाइट. अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो इट ऑल्सो डिक्रीजेज द एजिंग प्रोसेस. आफ्टर दैट सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर. एडवर्स लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन कैन इंक्रीज द वियर एंड टियर टिश्यू टू विच द इंडिविजुअल इज एक्सपोज्ड, है ना, कि वर्किंग कंडीशन कैसी है, एनवायरनमेंट कैसी है, ठीक है, तो उसकी वजह से वियर और टीयर टिश्यू का ज्यादा होगा. वियर और टीयर क्या होता है कि ब्रेक डाउन और डैमेज. वियर एंड टीयर होता है कि जो नॉर्मल टूट फूट होती है ना, मतलब डैमेज होगी, ब्रेक डाउन होगी टिश्यूज में, दैट विल बी इंक्रीज. स्ट्रेसफुल कंडीशन में एजिंग प्रोसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. जो पर्सन स्ट्रेस में होगा वो क्या है, जल्दी एज्ड हो जाएगा. आफ्टर दैट द थ्योरीज ऑफ एजिंग. इट इंक्लूड बायोलॉजिकल थ्योरी और साइकोसोशल थ्योरी. Biological theory include the process of biological aging differ not only species to species but also from one human being to the another. जो biological aging है ना, जो changes आएंगे बॉडी में, biological changes आएंगे वो species to species different होते हैं. तो इसमें theories हैं. फर्स्ट वन इज जेनेटिक फैक्टर थ्योरी. इसमें क्या बताया है कि म्यूटेशन इन डीएनए, की डीएनए में क्या होगी, ऑल्टरेशन होगी, चेंज होगा, विच में बी परपिचुएट ऑफ म्यूटेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, है ना. जब उसमें सेल डिवीजन होगा, किसी डीएनए में म्यूटेशन हुई, जब उसमें सेल डिवीजन हुआ तो वो म्यूटेशन उस टाइम पे भी प्रेजेंट होगी. परपिचुएशन का मतलब होता है कि स्टेबल रहेगी, कि जो म्यूटेशन ऊपर हुई थी, ऑल्ट्रेशन चेंजेस डीएनए में आए थे, वो सेल डिवीजन के टाइम पे भी प्रेजेंट होंगे. विच में इंक्रीज द नंबर ऑफ म्यूटेंट सेल इन द बॉडी, जिस वजह से जो मतलब म्यूटेंट सेल हैं बॉडी में उनका नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. जब सेल डिवीजन होगा, एक सेल था, अफेक्टेड सेल था, उसमें डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गए, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, डीएनए म्यूटेशन प्रेजेंट होगा. 2 से फिर 4 सेल बन गए, तो उसमें भी क्या है, डीएनए म्यूटेशन प्रेजेंट होगा. तो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ म्यूटेंट सेल इन द बॉडी विच में लीड टू माल फंक्शन ऑफ टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम, जिसकी वजह से टिश्यू में भी माल फंक्शनिंग होगी, ऑर्गन या सिस्टम में माल फंक्शनिंग होगी. डिक्लाइन इन बॉडी फंक्शन, जिस वजह से बॉडी फंक्शन डिक्लाइन हो जाएंगे. आफ्टर दैट नेक्स्ट है फ्री रेडिकल थ्योरी. फ्री रेडिकल नॉर्मली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं
बट दे आर हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल। फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बट दे आर हाईली रिएक्टिव, कि वो एकदम से किसी के साथ भी कंबाइन हो जाएंगे। तो फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग स्टीम्ड फ्रॉम द स्टडी ऑफ अनस्टेबल एटम। तो जो फ्री रेडिकल हैं वो किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। एंड डैमेज दे कॉज एज दे ट्राई टू स्टेबलाइज, जब वो स्टेबल होने की कोशिश करेंगे, किसी दूसरे एटम के साथ पेयर होने की कोशिश करेंगे, तो वो उसको क्या कर देंगे, अनस्टेबल कर देंगे, उसको भी अनस्टेबल कर देंगे। तो फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव मतलब वो एकदम से रिएक्ट हो जाते हैं किसी के साथ भी, क्योंकि वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट सीक टू बी पेयर्ड, जब वो पेयर होने की कोशिश करेंगे, बट इन टर्न डैमेज द सेल प्रोटीन लिपिड। तो जिस चीज के साथ वो कंबाइन होंगे, पेयर होंगे, उसको वो डैमेज कर देंगे, आइदर प्रोटीन भी हो सकती है, सेल, लिपिड, डीएनए, बाय ऑल्टरिंग देयर स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे और उनको डैमेज कर देंगे। क्लियर हो गया। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन या एटम्स होते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है ऑटो इम्यून रिएक्शन। ऑटो इम्यून रिएक्शन, जब हमारे ही बॉडी सेल हमारे सेल्स को डैमेज करेंगे, तो सेल अंडरगो चेंजेस विद एज एंड बॉडी परसीव दीज चेंजेस एज फॉरेन सब्सटेंसेस। है टाइम के साथ साथ बॉडी में क्या है, सेलुलर चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को बॉडी एज अ फॉरेन सब्सटेंस लेगी और एंटीबॉडी आर फॉर्म टू अटैक, है ना, और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगी, विच कॉजेज द सेल डेथ, ठीक है, जिस वजह से सेल डेथ हो जाएगी। देन these are the theory. Fourth one is wear and tear theory. wear and tear theory में क्या है कि damage from the ordinary use, जब हमारे सेल यूज हो रहे हैं तो उनमें क्या होगा, wear and tear, कुछ टूटेंगे, नए बनेंगे, तो that is the wear and tear theory. wear and tear theory proposes that the cumulative damage within a body leads to that of the cells, tissue, organ और finally organism, है ना, कि जब लगातार हम अपने बॉडी टिश्यूज को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डेथ हो जाएगी, पहले सेल्स की होगी, देन टिश्यू, ऑर्गन और फाइनली ऑर्गेनिज्म में ऑल्सो डाई। तो डैमेज और डेप्रिशिएशन रिजल्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी यूज। तो ये जो डैमेज है, ये डेप्रिशिएशन मतलब डिक्रीज इन वैल्यू, ठीक है, ये किस वजह से है, जब हम ऑर्डिनरी अपनी बॉडी पार्ट्स को यूज कर रहे हैं, सेल्स को यूज कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या है, वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरी इज साइकोसोशल थ्योरी। फर्स्ट थी बायोलॉजिकल थ्योरी, इट इंक्लूड द म्यूटेशन थ्योरी, फ्री रेडिकल थ्योरी, ऑटो इम्यून थ्योरी और द वियर और टियर थ्योरी। देन द साइकोसोशल थ्योरी इंक्लूड दिस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इंक्लूड डिसएंगेजमेंट थ्योरी, एक्टिव थ्योरी और कॉन्टिन्यूटी theory. After that, age related body changes.